বিশেষ করে ধনতলাবাসীদের কাছে আমি বলতে চাই যে এটা হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্য যে এইভাবে কোনো পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে, তাকে প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো আশ্রয় পাওয়া যাচ্ছে না এবং তাদের উপরে স্থানীয় কিছু তৃণমূলের হোতারা যেভাবে এখানে অত্যাচার করছেন, সেই অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে সেখানে দেখা যাচ্ছে কি অত্যাচারের কারণে তারা বাড়ি ছাড়া, পুলিশের অত্যাচার, সাধারণ এলাকার কিছু হোতারা তারা নির্যাতন করছেন। সেই কারণে আজকে এতদিন ধরে এরা বাড়ি ছাড়া, এদের বাড়ি এবং জমি দখল নেওয়ার একটা চক্রান্ত হয়েছিল। জোরপূর্বকভাবে সুদের বাবদে এদের কাছ থেকে 4 লাখ টাকার বিনিময়ে 21 লাখ টাকার কাছাকাছি তুলে নেওয়া হয়েছে এবং সেটা স্বীকারও করছে। তারপরে এদের উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি এখন তোমাদের আরও টাকা দিতে হবে, নালে জমি ছাড়তে হবে। এইটুকু জমি আছে, তার বাড়ির অবস্থা আপনারা দেখছেন, বাড়ির ভিতরে কোনো সরঞ্জাম নেই। মানুষ থাকতে গেলে যে সকল জিনিস লাগে বাড়িতে ঘুরে দেখুন, বাড়ির ভিতরে সেরকম একটা যে পরিবার থাকবে তার থাকতে গেলে একটা বিছানা লাগে, রান্না করতে গেলে হাঁড়িবাটি লাগে, চুলো লাগে, বাড়িতে পাখা, লাইট, বিভিন্ন সরঞ্জামের দরকার পড়ে মানুষের থাকতে গেলে। এই পরিবারটার কাছে সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। শুধু এইটুকু জমির উপরে এই টিনের চালা দিয়ে তারা এখানে থাকে। সেই এখানকার স্থানীয় যারা লোক, সেই লোকগুলো এখানে এদের উপরে, এর ছেলে অসুস্থ, তার বিনিময়ে টাকা নিয়ে চিকিৎসা করাতে গেছে, সেই চিকিৎসার বিনিময়ে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তার বিনিময় সুদের হার এত বেড়ে গেছে যার জন্যে এখন এরা দিশাহারা, এদের কাছে টাকা নাই সব। তারপর মিথ্যা মামলা আসামি। আজকে গতকালকে সাহিল এর ছেলে কালকে বেল পেয়েছে 41 দিন পর। তো এইভাবে একটা পরিবারের উপরে যদি অত্যাচার হয় তাহলে এই পরিবারগুলোর কাছে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। সেই জন্য আমি ধনতলাবাসীর কাছেও বলবো, সকল এখানকার মানুষ, কি আপনারাও এলাকার মানুষ হিসাবে ন্যায্য ন্যায় দেখে বিচার করুন, পরিবারের পাশে থাকুন, যাতে কোনো রকম অন্যায় এই পরিবারের সঙ্গে ভবিষ্যতে না হয়। এটা 1 নম্বর। দ্বিতীয় হচ্ছে এখনও ফিরোজ নিখোঁজ আছে। ফিরোজ যে এখনও কোথায় তার কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসন এখন অবধি ফিরোজকে উদ্ধার করতে পারেনি এবং যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে এখনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সেটাই আমাদের দাবি থাকছে কি ফিরোজকে পুলিশ উদ্ধার করুক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। আর এই পরিবারকে আজকে ওদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হলো যাতে এই পরিবার এখানে নিরাপত্তার সঙ্গে থাকে, সেই ব্যবস্থা পুলিশ প্রশাসনকে আমরা জানিয়ে এসেছি। পুলিশ বলেছে কি না কোনো অসুবিধা হবে না, তার দায়িত্ব পুলিশ নেবে। সেইভাবে আমরা পুলিশের উপরে আস্থা রেখে আজকে এই পরিবারকে এখানে রেখে যাচ্ছি এবং ধনতলার সকল মানুষের কাছে আমি আপিল করছি কে এটা একটা পরিবার নয়। এই পরিবারটাকে এখানকার কিছু মানুষ উস্কিয়ে দিচ্ছে কে এরা বিহারি আছে, কেউ বলছে পশ্চিমা আছে। এই বিহারি আছে, পশ্চিমা আছে বলে এদেরকে এখানে থাকার কোনো অধিকার নেই। দেশের সংবিধান প্রত্যেকটা মানুষকে থাকার অধিকার ভারতবর্ষে দিচ্ছে। যদি এদেরকে আপনারা বিহারি পশ্চিমা বলে থাকতে দেবেন না, তাহলে আজকে মহারাষ্ট্রে, কেরালাতে, কর্ণাটকে যখন আপনার পরিবারের ছেলেরা বাইরে যাচ্ছে কাজ করতে, তাদেরকে বাঙালি বলে ওখানে যখন পিটানো হচ্ছে, বাঙালি বলে যখন তাড়ানো হচ্ছে, তাহলে আপনাদের অধিকার আছে এই কথা বলার কি না আমাদেরকে কেন তাড়ানো হচ্ছে? আজকে যদি আপনি বিহারি পশ্চিমা বলে একে তাড়াবেন, তাহলে আপনাকে কালকে যদি কেউ তাড়ায় তা আপনারও কোনো নৈতিক অধিকার নেই এর প্রতিবাদ করার। एक मिनट, अरे तुमको जो पूछा जाए तुम बोलोगे ना भाई, बोलेंगे ना, तो बोलो, पूछेगा तुमसे। দেখুন তো এবার যেটা এটা হচ্ছে এই হচ্ছে কথা, কেন বলবো না আমি? এটা হলো এটা হচ্ছে ডিস্টার্ব করার জন্য খুঁজেছে। আরে हम भी रहेंगे, मेरे सामने ही बोलो, বাবুর সামনে আমি সব কথা। এই হচ্ছে এখন যেটা হচ্ছে বিষয়টা কি এই পরিবারটা থাকলো, এই পরিবারটা থাকলো এখানে। तुम लोग से पहले बात सुन लो, तुम्हारे কাছেই बोलছি, तुमसे भी बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पर हो, ये परिवार यहाँ पर है। आज से ये परिवार यहाँ रहेगा। आस पड़ोस जो भी है आप लोग भी इसका ध्यान रखिएगा और इंसाफ के साथ खड़ा होइए, क्योंकि अगर नाइंसाफी एक परिवार का साथ होता है, दूसरा परिवार खामोश होकर देखिएगा, तो कल आपको भी इसका मुकाबला करना पड़ेगा। कल आपके साथ भी यही होगा। अरे चुप रहिए आप लोग, ठीक है जी।
আর এটাই একটা জিনিসকে এই প্রতিবাদের জন্য আমরা বারবার করেছি, আজকে দীর্ঘদিন পর এরা বাড়ি ফিরেছে, এদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রশাসন করুক এই দাবি আমরা রেখে আজকে এখানে এদেরকে রেখে আমরা যাচ্ছি। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ সরাসরি ছিল, এর আগে একটা ইন্টারভিউতে এখানকার প্রধান প্রতিনিধি বলেছিলেন ফিরোজকে আপনি অ্যাবসকন্ডেড করে রেখেছেন, আপনার শেল্টারে রেখেছেন, কি বলবেন? আরে বাবা, যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকে কি আমি কোনো লোককে লুকিয়ে রেখেছি, তো তার দায়িত্ব হচ্ছে পুলিশে আমাকে অ্যারেস্ট করুক। আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করবে। আমার বাড়িতে আমি কোথাও লুকিয়ে রেখেছি, সেখান থেকে উদ্ধার করে প্রমাণ করুক নাকি ভিক্টর লুকিয়ে রেখেছে। ভিক্টর তো নিজে থানা ঘেরাও করে আমি গিয়ে দাবি করেছি কি ফিরোজকে উদ্ধার করা হোক। ফিরোজ আজ অবধি নিখোঁজ আছে, সেই লোকটা বেঁচে আছে না মারা গেছে তার কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। 400 এবং এই পরিবার আজকে নিজের বাড়িঘর ছাড়া ছিল, এদেরকে বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। তার ছেলে জেলে ছিল, কালকে ছাড়া পেয়েছে, সে আজকে এখানে ফিরে এসছে, তাদেরকে রাখছি। ফিরোজকে উদ্ধার করুক, এটা তো আমিও দাবি করছি। যদি কারো অভিযোগ থাকতে পারে আমার বিরুদ্ধে, সেই অভিযোগ যদি সত্য প্রমাণিত করতে পারে, তার জন্য আমি আইনে যে শাস্তি আছে সে শাস্তি আমার হবে, তা আমি তো সেটাকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু শুধু অভিযোগ করলে হবে না, কিন্তু ঘটনা যে ঘটেছে সেই ঘটনার সঙ্গে বিরুদ্ধে যে এফআইআর হয়েছে সেই এফআইআরকে তদন্ত করে দেখার দায়িত্ব পুলিশের। সেখানে ব্যক্তির নাম দিয়ে বলা হয়েছে কি এরা আমার স্বামীকে মেরেছে, এরা আমার বাবাকে তুলে নিয়ে গেছে, ওই দিন থেকে আমার বাবা নিখোঁজ আছে। তো সেই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ আজ অবধি ব্যবস্থা নিল না কেন, এটা প্রশ্ন নয়? তো মিথ্যা মামলা উপরে আজকে সাহিল তার ভাইকে জেল খাটতে হচ্ছে কিডন্যাপিং কেসে। তা আজকে ফিরোজ যে কিডন্যাপ হয়েছে তার বিরুদ্ধে যারা অভিযুক্ত আছেন তারা এখন অবধি জেলে যাননি কেন, তাদের বিরুদ্ধে আইনি কোনো ব্যবস্থা হয়নি কেন, এটাও তো প্রশ্ন আছে। তো এখানে আইনের দ্বিচারিতা কেন হবে? আমি অন্যায় করলে একরকম শাস্তি আর আপনি অন্যায় করলে আর একরকম শাস্তি, এটা তো চলবে না। না, আইন সবার ক্ষেত্রে এক আছে, সে ধনী হোক গরিব হোক, সে শাসক দলের হোক বিরোধী দলের হোক, সবার ক্ষেত্রে আইন সমান কাজ করবে। আমার দাবি এটাই, আইন যেটা বলছে সে আইনের পথে কাজ হোক, সবাই দেশে মানুষ শান্তিতে থাকুক, সম্মানে থাকুক, এটাই আমি চাই। আপনার কাছে আরেকটা শেষ প্রশ্ন, যেটা যারা এখানে অভিযুক্ত ফিরোজকে কিডন্যাপ করার বিষয়ে, তারাও আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছিলেন যে এই যে একটা ঘামাসান পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বা রাজনৈতিক চাপানুতর বা এই পরিবারের সঙ্গে ওদের একটা ক্লাস তৈরি হয়েছে, সেটা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কি বলবেন? আমি তো আমার যে বক্তব্য আমি যে দিয়েছিলাম প্রেস বাইট, তাতে আমি পরিষ্কার বলেছি যারা এখানে অভিযুক্ত আছেন তারা কেউ আমার থেকে আলাদা নয়, তারা সবাই আমার খুবই ঘনিষ্ঠ এবং আত্মীয়। কাকু আমি ছোটোবেলা থেকে দাদা বলে বড় হয়েছি, কাকু বলে বড় হয়েছি, কাকু মামা বলে বড় হয়েছি, তারা সবাই আমার আত্মীয় হন। কিন্তু আমি একটা কথা পরিষ্কার বলেছিলাম যে আত্মীয়র জায়গায় আছে, অন্যায় হলে তার ইনসাফের বিচারের মতন হবে, আমি এটাই বলেছি। আমি আজকেও সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। আমার কাছে এসছিলেন, কথা বলেছেন, আমি তাদেরকেও সম্মান দিয়ে বলেছিলাম যে ঠিক আছে বিষয়টা মিটে যাবে, কিন্তু যে আবদার করা হয়েছিল সে আবদার অন্যায়ভাবে হচ্ছে, আমি অন্যায়ের পক্ষে যেতে পারিনি। আমি এটা বলেছিলাম ন্যায্যভাবে আপনারা করুন, তারপরে মিটিয়ে দেওয়ার যদি ইচ্ছা থাকতো, তারপরে সাহিলের যে হোটেলে কাজ করতো সে হোটেলওয়ালাকে ধমকি দিয়ে তার কাজ ছাড়িয়ে দেওয়া হলো, তারপর সাহিলকে মিথ্যা মামলায় কিডন্যাপিং কেসে তাকে জেলবন্দি করে দেওয়া হলো, তারপরে থেকে বাড়ি ছাড়া হতে হলো। তো এইগুলো ঘটনাগুলো যে ঘটলো পরপর, যদি সত্যিকারে একটা মীমাংসার মধ্যে দিয়ে সমাধান চাইতেন তাহলে এই উদ্যোক্তা যে দেখালেন সেটা দেখানো দরকার ছিল না। আর আজকে আমি একটাই কথা আবার বলছি আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যম থেকে, যে আমি এখানে ধানতলাতে কোনো অশান্তি করতে আসিনি। একটা পরিবারের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে, সে অন্যায় যাতে না হয়, পরিবার বিচার পাক, তার স্বামী ফিরে আসুক, শান্তিতে এরাও থাকে, শান্তিতে সমাজে সবাই থাকুক, সেই ব্যবস্থাটা কিভাবে হবে সেটার জন্য যদি ওনারা এগিয়ে আসুন, আমি তাদেরকে স্বাগত জানাবো। नहीं, पहली बात वो लोग यहाँ से गए थे या उन लोग को कोई लेके गया था, विक्टर साहब लेके गए थे, हम लोग को नहीं मालूम। वो लोग अपने मर्जी के मालिक हैं, सब अपने के मर्जी के मालिक हैं, वो लोग अपने मर्जी से गए थे। दूसरी बात, तकादा जो पैसे पाते हैं वो तो जाएंगे, गए थे, हम लोग नहीं बोल रहे कि नहीं गए थे, गए होंगे, उन लोग से पैसे पाते हैं तो मांगे होंगे, लेकिन उन लोग पे कुछ ऐसा टॉर्चरिंग का आज तक हम लोग के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। तीसरी बात, उन लोग जो पैसा पाता था वो लोग कोई फाइंडिंग नो अदर वे, वो लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद शायद पुलिस उसको ढूंढ रहे थे, उस चक्कर में लोग वहाँ से फरार थे या चले गए थे। जो भी है, तो इनको वापस लाने का तो कोई मुद्दा सवाल नहीं है, उनका घर है ये, कोई विक्टर साहब हो या कोई भी हो, उनको घर उनके घर लाएगा,
इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई रोक सकता है, चाहे कोई भी हो। तो विक्टर साहब लाए उनको, वो विक्टर साहब शायद अपना मतलब हॉस्पिटैलिटी दिखाए होंगे, साथ में लाए होंगे, तो वो बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात आपने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, तो ये सही बात है कि वो लोग पैसे पाते हैं, यहाँ तक कि वो लोग एक्सेप्ट भी किए कि पैसे पाते हैं, तो जो पैसे पाते हैं फाउंडर से वो तो आएंगे। इस चीज़ को हम लोग को थोड़ा यहाँ के लोग, हम लोग जो समाज के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग को देखना पड़ेगा। प्लस हम लोग प्रशासन के साथ भी इसको लेके हम लोग इन्फॉर्मेशन करेंगे और क्या क्या करना पड़ेगा उन लोग के साथ बैठ के इस मामले को तो सुलझाएंगे और सुलझाने का कोशिश करेंगे कि किस हद तक इसमें जाया जाए और कैसे कैसे, जो ये इशू बहुत बड़ा हो चुका है, ऐसे नहीं है, इशू बड़ा है। तो प्रशासन से मिलके और यहाँ के हमारे जो जनगण है, जो यहाँ पे रिस्पेक्टेड पर्सन्स हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, सब मिलके हम लोग एक स्टेप लेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे और हम लोग पूरा दावे के साथ बोल रहे हैं कि उनकी फैमिली को यहाँ पे कोई हाथ भी नहीं लगाएगी और हम लोग प्रशासन से मिलके ये बात भी करेंगे, अपना आवाज़ रखेंगे, अपने बात रखेंगे और बाद में एक तय पे आएंगे कि कैसे क्या अभी स्टेप लिया जाएगा। एक सवाल और भी आपसे पूछेंगे, जिसके बारे में आप इससे पहले भी कह चुके हैं कि आरोप था विक्टर साहब का कि पंचायत के पैड में लिखा गया था 9.5 लाख का कहानी, 12.5 लाख का कहानी। आज वो मुद्दा नहीं, उन लोगों को कहा गया कि उनका ज़मीन कोई हड़पना चाह रहा है, इसीलिए घर से भगा दिया गया था, उसको रिहेबिलिट किए, यही विक्टर का कहना था। देखिए, तक सच है ये बात? मैं तो ये बोलूँगा कि कोई भी कह सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एक गाइड आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बोलने का कोई भी कुछ भी बोल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, विक्टर साहब के मुंह में मेरा ज़बान थोड़ी है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। ये जो मुद्दा है उनका घर, इससे पहले भी वो बोले हैं कि घर क्या कहते हैं उसको, ज़मीन कब्ज़ा करने का जो स्थिति था, ज़मीन कब्ज़ा करना होता तो ये लोग सब तो आज आ जाए, आपके मौजूदगी में आए, तो वो लोग अगर आ जाए तो इतने दिन से उनका ज़मीन कब्ज़ा क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा ही करना होता तो फिर जो फाउंडर से जो पैसे पाते हैं वो लोग कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटकाता था? फिर ये लोग तो खुद कोर्ट में चले गए, तो खुद कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया खुद को कि हम लोग विक्टिम हैं। विक्टिम होने के बाद क्या किसी पे टॉर्चर कर सकता है? कभी कोई नहीं कर सकता। ये लोग तो खुद कोर्ट के सामने मैटर को रखा है इन लोग, तो ये लोग कैसे कर सकता है? वैसा कुछ हुआ भी नहीं, ऐसा कुछ होना भी नहीं था, सारा इल्ज़ाम है, सब बेबुनियाद बातें हैं। शाहीना का कहना है कि उनके घर में कई बार उसका जानलेवा हमला किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। खास करके मंजर साहब का बात बताया जा रहा है कि पैसा नहीं देंगे तो आपका जान ले लिया जाएगा, और फिरोज़ का भी किडनैपिंग आपके तरफ से कोई ना कोई आदमी किया होगा, ऐसा ही उसका आरोप है। क्या कहना चाहेंगे? जान बेबुनियाद है, जान ले लिया जाएगा। जान लेना इतना आसान है, होता नहीं है। पहली बात, हम सब यहाँ पे मौजूद रहते हैं, हमेशा रहते हैं, 24/7 रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जान लेना होता तो शायद इतना मुश्किल भी नहीं है, मैं एक तौर पे बोल पाऊँगा। तो ये कहने की बात है। अब अपना बुराई, अपना गलती, अपना जो गलत काम, अपना जो पैसे खाए हैं वो दिखा जा रहा है कि उन लोग को देने का नीयत नहीं है। उसी को छुपाने के लिए, खुद को सही बताने के लिए, सफ़ेदी झलकाने के लिए ऐसे ऐसे काली काली बात लोग कभी कभी करते हैं। शाहीना का आरोप है कि जावेद साहब यहाँ के जिला परिषद के पास गए थे, उन्होंने भी कहा था कि 5 लाख पैसा, 5 लाख रुपया दे दो और इस गुत्थी को या इस झमेला को, हम सबका जो देनदार है उसको देके झमेला को ख़त्म कर देंगे। थाना में भी आप लोग गए होंगे, वहाँ भी बैठक हुआ होगा, वहाँ भी 2-3 लाख का कहानी बना था, लेकिन गुत्थी नहीं सुलझ रहा है। क्या कहा माजरा हो सकता है? जबर साहब, मैं तो आपको फिर से यहाँ से शुरुआत से जाना पड़ेगा इस मैटर में। शुरुआती मैटर में जो मैटर है वो 17 लाख समथिंग का था, ठीक है, 17 लाख समथिंग का था। उसके बाद 21 लाख का बात कर रहा था उन लोग। इससे पहले विक्टर साहब जो बोले थे वो 4 लाख के बारे में बोले थे। जावेद साहब जो बोले थे वो साढ़े 9 लाख समथिंग, 9,60,000 के बारे में बोले थे। और आज फिर आप बोल रहे हैं कि शाहीना 5 लाख के बारे में बोल रही है। तो ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है। तो वो लोग पहले अपना स्टेटमेंट रेडी करे, तैयार करे, खुद को तैयार करे, स्टडी करे खुद यहाँ पे, तब अपना प्रेजेंटेशन दे। नहीं तो यहाँ तो वो लोग खुद पजल्ड हो रहे हैं। कभी 4 लाख का कहानी विक्टर साहब बता रहे हैं, उनके जावेद साहब हमारे जो यहाँ के जिला परिषद है वो 9.5 लाख का बात बता रहे हैं। आपने बोला शाहीना 5 लाख की बात बता रही है। एग्रीमेंट में 17,21,000 का बात है मंजर के साथ, बाकी किसके साथ? तो वो लोग तो खुद उलझे हुए हैं। पहले उन लोग को सुलझ के आना चाहिए, उन लोग को खुद पजल्ड नहीं रहना चाहिए, उन लोग को समझना चाहिए कि कैसे मीडिया के सामने बोला जाता है। ये बात हर घर तक पहुंचती है, आपके थ्रू हमारी बात हर घर तक पहुंचती है। तो हम जब आपके सामने बोलेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ का नहीं, कुछ पेपर्स और खुद को रेडी करके भी बैठना पड़ता है।
तो वो लोग खुद पजल है, इसमें क्या बोलेंगे। 7 बार पे वो 7 स्टेटमेंट दे रहे हैं, 7 तरह के अमाउंट की बात कर रहे हैं। आप लोग क्या समझ रहे हैं ये जो लेन देन का चक्कर है या फिर कानूनी कार्रवाई, तो इसके लिए आप लोग को तो कोर्ट का ही दरवाजा आखिर में खटखटाना पड़ेगा। नहीं, आप लोग क्या, मैं उन लोगों के साथ हूँ, पहले भी था अभी भी हूँ। जो विक्टिम्स हैं, जो पैसे पाते हैं उनके साथ हूँ, लेकिन जो पैसे पाते हैं वो लोग दरवाज़ा कोर्ट का खटखटा चुका है। ना कोर्ट से हम बड़े हैं, ना समाज बड़ा है, ना विक्टर साहब बड़े हैं, ना कोई बड़ा है। तो मामला कोर्ट में है। मैं चाहूँगा कि कोर्ट अपना सही राय दे और कोर्ट के जजमेंट पे हम लोग पूरा मान्यता रख के हम लोग मानेंगे भी, और हम लोग विश्वास भी करते हैं कोर्ट का जजमेंट जो भी होगा आने वाले दिन में एकदम सही होगा। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा लोगों का कहना है, पड़ोसियों का कहना है, क्योंकि वहाँ जब विक्टर साहब आए तो उसी के पड़ोसी एक लड़का जो कहें कि हर दिन गाली गलौज और दंगा फसाद का एक माहौल बनता है, क्योंकि जो कर्जदार है वो लोग बार बार आते हैं। तो आपके लिए तो ये कह सकते हैं कि सरदर्द का कहानी बन जाएगा हर दिन का। नहीं, मैं वही फिर से बोलना चाहूँगा कोई दफा कि किसी के मुंह में हमारा ज़बान नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का हमारे गैसल 1 का रिकॉर्ड है। लॉ एंड ऑर्डर कभी होता ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो भी है एक मामला है, इसको लेके हम प्रशासन से बात करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग को अलर्ट तो रहना पड़ेगा, प्रशासन से बात करेंगे, हम लोग प्रशासन से बैठेंगे, और हमारे यहाँ के जो कायदे के लोग हैं, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, सब हम लोग मिलकर एक जगह पहुँचेंगे कि क्या करना होगा, कैसे मेंटेन करना होगा, कैसे इस मैटर को सुलझाना होगा। और बाकी बात जो है कोर्ट में है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग मिलाएंगे कोर्ट प्रशासन के साथ और अपने लोगों के साथ। विक्टर का आखिरी दरख्वास्त आपसे था, आज का जो मतलब हादसा है उनसे उनका कहना है कि प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव या प्रधान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ उसको कम से कम सेफ्टी सिक्योरिटी से रखा जाए, ये जिम्मेदारी उसको लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा कोशिश करूँगा, और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि उनकी सेफ्टी ऑब्वियसली हमेशा से थी, अभी भी उनकी सेफ्टी रहेगी। और मैंने इससे पहले भी विक्टर साहब को एक बात कहा था, आपके थ्रू फिर बोलना चाहता हूँ कि मैंने बोला था कि विक्टर साहब आप ये इनिशिएटिव लिए, जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं ठीक है, लेकिन एक इनिशिएटिव, एक दरखास्त मेरे तरफ से भी है कि एक इनिशिएटिव और लीजिए कि जो विक्टिम्स है, बाकी जो भी है, मैमूना थी, जरीना थी, और जो भी है, आज़ाद था, जो भी है, उन लोग को भी एक कुछ इनिशिएटिव लीजिए, उन लोग को भी उन लोग का पैसा जैसे मिल सके, क्योंकि वो भी गरीब है, मजलूम है, बेसहारा है, बेबस लोग हैं। तो उनके पैसे भी पैसे थे, उनके ज़िंदगी भर के कमाई वो एक परिवार को दे चुके हैं। तो ऐसा एक इनिशिएटिव लीजिए कि उनका पैसा भी उनको वापस मिल जाए, और ज़रूरत हो, इससे पहले भी मैं आपको बोला हूँ कि ज़रूरत हो तो वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके साथ खड़ा रह के इंशाल्लाह इस काम को अंजाम देना चाहूँगा। क्या आप लोग प्रधान पंचायत के बॉडी चाहेंगे कि विक्टर साहब के मौजूदगी में इस तरह का कुछ सामाजिक बैठक हो जिससे इस समस्या का सुलझ जाए? इंसाफ, बिल्कुल इंसाफ जिस एंगल से हो। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ लोग विक्टिम्स हैं यहाँ पे, उन लोग को उनका हक अगर मिल जाए, चाहे जिसके सहारे मिले, जैसे भी मिले, अगर विक्टर साहब में वो एबिलिटी है, जैसे वो आज आए यहाँ पे, वो लोग जो थे, जो विक्टिम्स है, उन लोग को भी बुला सकते थे कि उन लोग का समस्या भी सुन सकते थे। आज उनको ये सुनना था। वो एक सीनियर लीडर है, इतने बड़े लीडर है, मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनको आज यहाँ पे आके उन लोगों से भी मिलना था। मेरे हिसाब से जो विक्टिम्स है, जो अपने पैसे खोए हैं, कि उनका पैसा कैसे दिला पाएंगे, उनके लिए क्या किया जाएगा। हाँ, हमसे अगर नहीं बैठे तो उन लोगों को लेके बैठना था, मिलाना था। आप एक परिवार के साथ आए, यहाँ पे शिफ्ट करके चले गए, अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों का दर्द भी सुनना था, जो कि अब तक टिल डेट उन लोग का दर्द अब तक नहीं सुने विक्टर साहब। पुलिस से आज हम अपना घर में आए, अगर विक्टर साहब नहीं रहता तो हम घर में नहीं आ सकते। वो गरीब का मसीहा बन जाता है, और मसीहा है वो। अगर आदमी उसको नहीं समझता है तो आदमी का बेवकूफ़ी है। आज हम स्टेशन में लेके जवान लड़की को जब हम भटक रहे थे, पुलिस वाला जब हमको परेशान कर रहा था, मेरे नाम से वायरल था झूठा केस में, तो हम भटक रहे थे लड़की को लेके रायगंज, दलकोला, कानपुर, किशनगंज, हर जगह। तो हम विक्टर सर को बोले कि सर हमको रहने का कोई ठिकाना नहीं है, हमको पुलिस वाला भी परेशान कर रहा है। और जो वहाँ का आदमी है, डब्लू का खानदान, वो पूरा ही आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है। हम लोग को मार भी देगा, जान से हम लोग को मार भी देगा, धमकी दे रहा है। तुम्हारी लड़की को किडनैप कर देंगे, नहीं तो जमीन दे दो। उसके बाद हम जब रायगंज से हम विक्टर को फोन किए तो विक्टर बोला ठीक है अब आइए। तो वो हमको आज 22 दिन से अपने पास रखा, खिलाया, सम्मान दिया, और आज उसी के बदौलत हम अपना घर में हैं। लेकिन घर छोड़कर आप लोग क्यों चले गए थे? घर छोड़ना एक ही कारण था कि मंजर जो था और आजाद वो ज्यादा हम लोग को परेशान कर रहा था। रात को 12 बजे आदमी लोग आता था घर तोड़ फाड़ करने के लिए, तोड़ फाड़ करके बोलता था कि रुपया दो, नहीं दोगे तो तुम लोग को जान से मार देंगे। आप लोग रुपया लिए थे उससे? हाँ, 4 लाख रुपया लिए थे। 4 लाख का 21 लाख रुपया दे चुके। लास्ट में उसको हम बोले भैया और हम नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ का जो पंचायत था, उस पंचायत में जब बोले
तो यहाँ पे खुश मोहम्मद नाम का एक आदमी था, उसके पास हम गए। उसके पास दिए तो वहाँ पे मेरा एकदम एक तरफा फैसला किया। वो फैसला ऐसा किया कि 8 दिन के अंदर में आपको 9,60,000 देना पड़ेगा, नहीं तो 2 महीना में 12.5 लाख। तो वो हम सुन के पंचायत छोड़ के चले आए। फिर पंचायत वाला हमको जबरदस्ती पकड़ के ले गया, वहाँ पे साइन किया। तो 22 तारीख को मेरा फैसला हुआ। 26 तारीख को मैं एसपी के पास कंप्लेन की। बस पुलिस वाला आया, इंक्वायरी किया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। फिर थाना में गए तो थाना में भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद 2 बार थाना में बैठक हुआ। तो एक बार हुआ तो बोला कि ठीक है आपको दे दिया पैसा और नहीं देगा, वो ऑफिसर रिटायर हो गया। उसके बाद फिर आईसीयू बैठक किया। तो आईसीयू को जब हम बोले कि सर हम इतना लोन उठा के इतना कर्ज लेके इसको दिए हैं, तो आईसीयू बोलता है कि नहीं ये बात हम नहीं मानेंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो फिर आईसीयू बोलता है 2 लाख रुपया दे दीजिए, नहीं तो आपको जेल रखना पड़ेगा। हम बोले कि सर ठीक है, जब आप ऐसा बात बोलते हैं तो ठीक है, हमको जेल कर दीजिए। उसके बाद जब हम नहीं माने तो वो लोग हम पर अत्याचार करने लगा। अत्याचार ऐसा किया कि झूठा केस में एक मेरा खलिया सास है, उससे हम 2 लाख रुपया लिए थे, उसको हम मोबाइल से भी रुपया दिए हैं। वो झूठा केस में डाल के यहाँ पे खुद से आके वो 4 महीना मेरा घर में रहा ब्याज के लिए, कि हमको ब्याज दो। मेरा घर वाला हमको निकाल दिया, हम उसको रख लिए, बोले ठीक है हम तुमको देंगे। मगर वो लास्ट में क्या किया, 50,000 जब मेरा लड़का उसको दिया तो वो घर चला गया। 10 दिन के बाद आके उसका भाई बैठा हुआ था, जागीर रहमान मेरा घर वाला था, उसके आगे में 10 गोली खा के, और मेरा लड़का जादू का दुकान में काम कर रहा था, बस वो खा के गिर गया। उसमें मेरा अशराफुल एक ममिया सास है और एक तो जकीना नाम का है, वो लोग उसको अस्पताल किया, जाके वहाँ पे भर्ती किया। और हम लोग उसको छुए तक नहीं, वो जाके डायरेक्ट मेरा घर में फांसी लगाता, अगर रुपया नहीं दोगे तो तुम लोग को हम फंसा देंगे। ये बात पहले ही हमको उसका लड़का भी बोला था कि मंजर हमको बोल रहा है कि हमसे मिल जाओ तो तुम्हारा भी पैसा वसूल देंगे, अगर मिल जाएंगे तो तुम्हारा बुनियाद को हम खत्म कर देंगे। हम बोलेंगे अगर मिलिएगा तो आपका मर्जी है। वो मिल के झूठा केस डाल के फर्स्ट में मेरा उसी दिन मंजर किया है 12 तारीख को केस, और आजाद किया है 27 तारीख को। उसी दिन खा के मेरा सास लोग बोला कि तुम अपने से गोली खाए हो, तुमको कोई खिलाया भी नहीं है, ना तुमको कोई छुआ है। और इसी घर में जाके वो फांसी लगा रहा था। तो मेरा लड़की बोला कि तुम क्यों फांसी लगा रहे हो। उसके बाद वो चला गया, उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया। उसका लड़का क्या किया, 5 भरी सोना और जहर खिलाने का इंजाम देके अटेम्प्ट टू मर्डर 360 धारा मेरा बेटा पे लगा के हम लोगों सबका नाम डाल दिया। मंजर भी डाला था पहले, और वो भी डाल के उसके बाद 12 बजे रात में मेरा लड़का को पुलिस वाला आया और बस मेरा लड़का को पहले साहिल को अरेस्ट किया, साहिल को करके फिर आजाद को किया, इराज को। उसके बाद लड़का सबका बेल किए। और मंजर जो है, क्या एक प्रधान का भाई को कोई गरीब उसको मार सकता है? पहले आपसे हम ये पूछते हैं, कोई गरीब तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन प्रधान को मार कैसे सकेगा? लडुआ बेले यहाँ पे आया था मंजर हमसे पैसा मांगने के लिए, मेरा लड़का उसको बेले दाव से मारा है, रट से मारा है। तो डॉक्टर भी मेडिकल रिपोर्ट गलत दिया है, नसीमा का भी और मंजर आलम का भी। तो सर जब गरीब आदमी ने उसको मारा था, जिस टाइम में खून निकला था, तो खून तो दिखाना चाहिए कानून को। कानून भी नहीं कुछ किया, और पुलिस वाला पूरा दिखावा था, हम लोग का नहीं सुनता था। कभी आके बोलता था आप स्मैक बेचते हैं तो उसका रेट मारता था, कभी आके लड़का को परेशान करता था, कभी हमको परेशान करता था। लास्ट में 2 वारंट मेरे नाम से हमको यहाँ पे जब सोते थे किसी रिश्तेदार के पास, तो वो लोग को बोलता था अगर तुम लोग उसको सुलाओगे तो तुम लोग को भी बहुत बुरा कर देंगे जब पुलिस घुसेगा तो। ये कहने वाला ये हफीज है जो बगल का है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो बगल का है, वो ऐसा किया। उसके बाद पुलिस वाला हमको ना अफ्तार करने देता था, न शहरी खाने देता, न घर में सोने देता था। उसके बाद हम घर से बेघर हो गए। बेघर होते हुए उसके बाद जब मेरा लड़की यहाँ पे था और मेरा घर वाला भी उस टाइम में मेरा घर वाला के नाम से जो केस था तो भागा फिरता था। एक लड़की को लोग तैयार किया, उसका नाम है जरीना, उसका घर वाला का नाम है अब्बास। अब्बास फोन करके विक्टर सर को ये भी बात बोला है कि मंजर आलम मेरा घर में आके बोलता है कि तुम लोग भी केस करो। तो हम बोले कि हम केस नहीं करेंगे। तो वो केस उसका ससुर और उसका बीवी 2.5 लाख रुपया घूस खा के उसके बाद हमको किडनैपिंग केस, उसका भाई का नाम मनोवर है, किडनैपिंग केस डाला। किडनैपिंग केस अगर सर डालता है तो क्या किडनैप हुआ आदमी क्या खुद अपने आप निकलता है? उसने मेरा लड़की बोला है, जिस दिन मेरा हम लोग उसका डेड बॉडी का हल्ला उठा दिया कि उसका डेड बॉडी मिला है, वो लड़की मर चुका है। तो फिर जाके हम लोग भाग गए, किशनगंज में रहते थे तो वहाँ से हम भाग गए। मेरा लड़की टुटिया भाग गया, खाला का घर, एक मेरा चचेरा खाला। स्टेशन में वो लड़की अकेला ही है, फोन का जरिया से मेरा खाला सबसे बात कर रहा है। अब्बास को जब फोन किया कि सर आप एक तो मौलवी आदमी ने आपका बीवी कैसे झूठ फुसका, बोले किडनैप हो गया, बोले मर गया। तो ठीक है, जब आप ये तो बात बोलते हैं तो हम खुद मर जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं है और मोबाइल में हम वायरल कर देंगे। आपको तो लड़वा ही केस करवाया जो जबरन।
और आपको घूस खिला के आप लोग 2.5 लाख का रुपया का चक्कर में क्या बोलता है उससे हम लिए हैं, वो हमको दिया है पैसा, मगर ये नहीं कि जेल खट लिए तो अब उसको हम पैसा देंगे, उसको अब 1 रुपया नहीं देंगे। इसलिए मेरा बेटा 1 महीना 13 दिन जेल में रहा, वो किडनैपिंग केस डाला है। तो मेरा शौहर किडनैप था, उसको 3 महीना हो गया, मेरा शौहर उसको कैसे किडनैप किया, उसका बदन में कैसे हाथ लगाया मेरा शौहर, मेरा लड़का। तो ये काम सब हफीज का, रब्बुल का, लडुआ का, आजाद का है। और आजाद भी जो है तो आजाद हमको पहले से धमकी देता था कि हमारा पैसा वसूलेगा तो सिर्फ हमको डब्लू का खंडाने वसूल के देगा। और एक इमाज नाम का आदमी ने उसके सामने बातचीत हुआ था कि ठीक है ईद के बाद तुम्हारा जो ब्याज का पैसा है तुम्हारा पैसा दिया जाएगा थोड़ा बहुत करके। जब हम बोले कि हम दे देंगे ईद के बाद, तो वो ईद से पहले ये घटना कर दिया हम लोग के साथ। आप लोगों के विरुद्ध जो अभियोग वो लोग दे रहा है कि आप लोगों से बहुत कोई मार्केट में रुपया पाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? प्रमाण होना चाहिए उसका। अगर मेरे पास पाता है तो उसका प्रमाण होना चाहिए। जो आदमी पाता वो आदमी मीडिया में नहीं आया है, वो मेरा दिल में है कौन पाता। वो विक्टर को भी हम बता चुके हैं कि ये सब आदमी मेरे पास। आदमी तो पैसा पाता है आपसे। हाँ, 2 लाख रुपया। जो भी पाता है तो वो लोग तो तगजा के लिए आपके यहाँ आते हैं और हर दिन आप लोग के यहाँ एक गंदा माहौल होता है। वो गलत बात है, ये सब गलत है, ये सब बनाया हुआ है। आपका हस्बैंड कहाँ है? मेरा हस्बैंड का पता है, उसका कोई पता नहीं है, उसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। और एक तो बात हम आपको बोलते, ब्याज के लिए किसी का गरीब का इतना बड़ा। फिर एक तो बात, मेरा 17 लाख का जो एग्रीमेंट बनाया था, क्या एक गरीब को 17 लाख रुपया दे देता है? मेरा घर में क्या है? सोने का तो एक तो चौकी भी नहीं है, एक दरवाजा भी नहीं है, तो वो कैसे हमको 17 लाख रुपया दे दिया? क्या पड़ोसी का भी गवाह नहीं है? न मेरा 3 लड़का का उसमें साइन है। तो ये बंदूक दिखा के हमको रूम में बंद करके उसके बाद हमसे एग्रीमेंट किया था। और वो 17 लाख रुपया का क्लेम डाल के अटेम्प्ट टू मर्डर पहले मंजर आलम किया, उसके बाद ये किया, आजाद किया। तो सर सब तो हम पर केसे डाल रहा है। और हम वो लोग केस करते हैं तुरंत पुलिस वाला एक्शन लेता है, हम जो केस करते हैं तो पुलिस वाला कोई एक्शन नहीं लेता है। मेरा लड़की जब हम नहीं घर में थे तो मेरा लड़की को टॉर्चर करता था, मेरा घर को टीना उना को तोड़ दिया। और जो आदमी पा रहा था सबका नाम हम विक्टर को बता दिए। कौन लोग तोड़ा आपका घर? आजाद, लडुआ, रब्बुल, ये सब मिल के मेरा घर में 12 बजे रात में आके दादागिरी, धमकी, ये सब करता था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम साइना खातून है। मेरा इस लड़का को जो ले गया है यहाँ से, हम जब भटक रहे थे, मेरा नाम से वायरन था, तो यहाँ पे मेरा बच्चा का काम छुड़वा दिया जाबुल का, यहाँ से ये छुड़वाया था क्या बोलता है हफीज, यही लोग। उसके बाद मेरे लड़का को 25 आदमी से गुंजरिया में लेके चला गया जिला परिषद, वहाँ पे गब्बर और क्या नाम सद्दाम और ये नूर आलम, ये लोग 25 आदमी से पहले लड़का को मारा है कि तुम्हारा माँ कहाँ है, तुम्हारा बाप कहाँ है। तो उसमें नौशाद कपड़ा वाला जो है वो बोला है कि इस लड़का को मेरा हवाला कर दीजिए जिला परिषद, और आप सिर्फ साथ दीजिए, इसका टंगड़ी हाथ। जिला परिषद मतलब कौन? जिला परिषद जाबिर, जो यहाँ का जिला परिषद है मियाँ बस्ती का, जाबिर अख्तर है जो, वही। उसके पास हम 5 बार गए हैं, उसको बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत फैसला किया है। तो वो मेरा बयान सुन के वो हमको बोल रहा है कि ठीक है तुम 5 लाख रुपया दे दो, हम इस मामला को खत्म कर देंगे। और वही इंसान हमको, जब हम 5 दिन का भूखा थे तो हमको 200 रुपया दिया खाने के लिए। तो हमको 200 रुपया जब जिला परिषद दिया है तो 5 लाख रुपया हम कहाँ से जिला परिषद को देते कि मेरा मामला को सॉल्व कर देता। ठीक 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 ठीक। तो ये सब झूठा केस है, और जो बोल रहा है मीडिया में कि हम इतना पाते हैं, सब झूठा है। देखिए ये मामला तो चल ही रहा है और आप लोग से इससे पहले भी मेरी बातचीत हुई है। अब रहा सवाल शाहीना का जो मामला है, आज वो विक्टर बाबू उनको, उनके बच्चों को लाके यहाँ पर रखा उनके घर पर। वो लोग शायद केस में एक्यूज थे, बेल होने के बाद वो लोग अपने घर पे आए हैं। बेल होने के बाद कोई भी अपने घर पे वापस होता है तो वो कोई बड़ी बात तो नहीं है, या उसके ऊपर कोई टॉर्चरिंग करेगा या कुछ करेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो एक लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक वो बेल पाया और बेल होने के बाद वो अपने घर में आ ही सकता है। हर आसामी आता है, मर्डर करने के बाद भी मर्डर करने वाले लोग आ जाते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है, ऐसा है। तो बहुत अच्छा बात है। और दूसरी बात यह है कि इलाका हमारा है, ये बात आप जानते ही हैं, और सुबह से लेकर शाम तक इलाके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर कोई बैठा रहता है तो जावेद अख्तर बैठा रहता है, बिना कोई लस्ट के। सिर्फ एक ही लस्ट है, ताकि हमारा इलाका शांति में रहे और पुरसुकून रहे। उन लोगों के ऊपर में किसी में कोई परेशानी होती है, रात के 2 बजे भी होता है तो हमें फ़ोन करके जगा देता है,
और हम उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ये एक तरह का मिसाल है जावेद अख्तर अपने इलाके के लिए, और ये हम धन्यवाद देते हैं हमारे इलाके के लोगों को, क्योंकि इलाके के लोग हम पर भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, और हम उनके आस्था और भरोसे पर खड़ा उतरते हैं। दिलासा भी दिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 लाख रुपए की बात जो आपने कहा, वो हकीकत मेरे पास कई बार आई और अपना वो दुखड़ा सुनाई भी। सुनने के बाद हमने कहा कि ठीक है, हम दूसरे पार्टी को भी बुलाते हैं। दूसरे पार्टी को भी हम बुलाए, बुलाने के बाद जो कर्जदार है उसके बाद उसको भी हमने कहा कि देखो, जो होना था वो हो गया है। और खुद वो शाहीना ने हमें कहा था कि 9,60,000 रुपये हमने असल रूप में पैसे लिए थे, और उसका बहुत कुछ डिमांड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमें लेकिन जाने दो वो सब, तुम 9,60,000 रुपया ली हो तो वो तो असल तुमको देना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि हम तो 21 लाख रुपए दे चुके हैं। तो हमने कहा कि 21 लाख अगर तुम दे चुकी हो, ये 3 जुलाई 2024 से लेके अब तक, तो उसका कोई एविडेंस है तुम्हारे पास तो तुम हमें दो। तुम्हें कोई अगर प्रूफ है तो तुम हमें दो, ताकि हम उसके साथ फाइट कर सकें कि तुमको इतना रुपया दे चुकी है वो, तो फिर तुम और क्यों मांगते हो। तो उसने कहा कि हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, हम तो ऐसे पैसे देते रहे। तो हम बोले कि ऐसे कौन मानेगा, कुछ तो एविडेंस होना चाहिए। जैसे अब वो उसको एक एग्रीमेंट लिख के घूम रहा है, उसके एग्रीमेंट में तुम्हारा साइन भी देख रहे हैं, एक एविडेंस तो है उसके पास। तो तुम्हारे पास अगर कोई एविडेंस है तो तुम हमारे पास में दो कि हमने 21 लाख रुपए दिया है, तो हम तुम्हारी तरफ से फाइट करेंगे। तो उसके बाद फिर वो आई वापस, बोली हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं भैया, ऐसे खाने पीने की परेशानी है। ठीक है, जो भी हुआ, हाँ, वो जो मेरा फर्ज बनता है हमने अपनी तरफ से किया। तो हमने उसको कहा कि एक काम करो, तुम असल का भी छोड़ो, हाँ, वो 9 लाख 9.5 लाख भी छोड़ो, तुम एक काम करो, 4-5 लाख रुपए अगर तुम्हारे पास इंतज़ाम है, कोई रास्ता अगर तुम्हारे पास निकलता है तो तुम निकाल के अब बैठो। क्योंकि ये तुम्हारे पास और भी कुछ कई औरतें मेरे पास आई थी यही मामला को लेकर के, हमारा पैसा शाहीना लेके बैठी हुई है, वो पैसा देती नहीं है। जब भी शाहीना के पास जाते हैं तो शाहीना हमको धमकाती है, डराती है, केस कर देती है, इस तरह का। तो हमने देखा कि ये शाहीना तो अलग अलग इसमें घेरी जा रही है। तो हमने कहा कि देखो, तुमको तो देना ही पड़ेगा, तो जब देना पड़ेगा तो तुम ये कुछ रकम निकालो, निकालने के बाद हम सबों को बुलाएंगे, जो जो तुमसे पावनादार है तुमको भी बुलाएंगे। ये 4-5 लाख रुपया सबको हम कम बेशी करके अदा करके तुमको वहां से हम आज़ाद करने की कोशिश करते हैं। इतना हम कर सकते हैं। एक तो ये चैप्टर था, हमें कहा था, ये रास्ता हमने निकाल के दिया। उसके बाद फिर वो आई नहीं मेरे पास। दूसरा बात रहा कि उसका बेटा जो आया था, साहिल नाम था उसका, हमको अच्छी तरह से याद है, गुंजड़िया में एक लेडी वहाँ पर गायब हो गई थी, ट्रेस आउट हो गई थी। तो कंप्लेन ये हुआ था कि वो उसके पास गई थी पैसा मांगने के लिए, तो उसी दिन से वो लेडी जो है तो गायब हो गई, कचनाही की थी वो। तो पता ये चला, उसके रिश्तेदार जो है तो गुंजड़िया में रहते हैं उस लेडी का। तो पता ये चला कि वो शाहीना के पास जो लेडी गई थी, तो वो लेडी भी गायब है, उसी दिन से शाहीना भी गायब है। तो पता ये चला कि शाहीना के पास वो गई और हमारी रिलेटिव भी गायब हो गई, शाहीना भी गायब है, तो हम लोग कैसे तलाश करेंगे। तो इन लोगों को पता चला कि शाहीना का भाई जो वहाँ पर एक आइसक्रीम का कुछ छोटा मोटा फैक्ट्री चलाता है गुंजड़िया में, तो वहाँ पर गुंजड़िया के उस लेडी के रिलेटिव्स उसके घर पे गया। घर में जाने बाद अचानक देखा कि शाहीना का बेटा जो है, साहिल नाम है, वो वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर जो मौजूद है, तो साहिल को पकड़ा कि भाई तुम्हारी माँ कहाँ है। तो शाहीना का बेटा ने कहा कि वो लेडी आई थी, हमारे घर कई बार आई है, हम जानते हैं, मेरी माँ अभी कहाँ है हमको नहीं मालूम। तो बोले कि तुम अपनी माँ को बुलाओ, हम लोग पूछेंगे कि उस लेडी को कहाँ लेके गई है। हाँ, तो वहीं पर बकझक हो रहा था, तो किसी ने हमको फोन किया है कि जावेद ऐसा ऐसा बात है, और साहिल नाम का एक लड़का को ये लोग अटका के रखा है, तो कहीं कुछ कर नहीं रहे, गुस्से में थे लोग। उसके रिलेटिव कई दिन से गायब हो चुकी है। तो हमने कहा कि उन लोगों ने कहा कि हम लोग आपके पास लेके आ रहे हैं। तो वो लोग हमारे ठीक है लेके आओ। हम ये चाहते कि कोई उसके ऊपर में कुछ करना नहीं,
तो साहिल को सभी को लेकर के आया यहाँ पर, लाके हम बैठा के रखे बाकायदा, उन लोगों को अलग रखे, साहिल को बैठा के चाय भी हमने पिलाया, बिस्किट भी खिलाया। हम बोले बाबू अगर कोई इसमें सच्चाई है तो तुम अपनी मम्मी को बुलाने का रास्ता निकाल दो तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा। अब इन लोग के रिलेटिव गायब हो गए, तुम थोड़ा कॉपरेट करो। तो ये बोले कि हमको मालूम नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब जो बात वो गुंजरिया में उन लोगों के सामने बोला था, वो बात यहाँ पर जो तो पलट दिया, वो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। तब हमने देखा कि मामला तो कुछ और है। तब जाके लोग कह रहे थे कि साहिल को दे दीजिए, हम लोग जो तो निकाल लेंगे अपने रिलेटिव को। हमें कि नहीं, हम नहीं देंगे भाई, तुम लोग को अगर कुछ करना है तो तुम लोग थाने में जाओ। तो हमने थाने में इंफॉर्मेशन दे करके वहाँ से वो राजा बाबू को आईसी साहब ने भेजा और हमने साहिल को हम अपने सिक्योरिटी के साथ गाड़ी में बैठा के वो राजा आयु साहब के पास हमने भेजा, हैंड ओवर किया, ताकि उसके ऊपर में किसी किस्म में कोई टॉर्चरिंग नहीं हो, कोई अटैकिंग नहीं हो। और कोई अगर ये कहता है कि उसे मार किया, ये क्या, वो क्या, ये बेबुनियाद बात है। किसी ने एक उंगली तक उसको हमने लगाने नहीं दिया था, उसको अपने प्रोटेक्शन में हमने रखा था। अगर साहिल सही सच्चा लड़का है तो साहिल खुद ब खुद बोलेगा कि जिला परिषद साहब के घर में हमको इज्जत मिली थी या प्यार मिली थी या वहां पर टॉर्चरिंग मिली थी। रहना तो उसको है ना यहाँ पर। हमको सही है कि हमको इतना यकीन है, चाहे शाहीना हो, चाहे साहिल हो या कोई भी हो, कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि रहना सबों को एक साथ में रहना है। तो झूठ का सहारा लेकर के 2 दिन बीत जाएगा, जिंदगी नहीं बीतेगी। यही बात है और कोई बात नहीं। क्या बाबू को ये भी कहा था कि आज आप इस मामले को अगर आपके पास पहुंचा है, बहुत अच्छी बात है। आज जो पाते हैं वो लोग भी आपके पास गए हैं, तो बेहतर होगा कि दोनों को बैठा करके सच्चाई क्या है उसको खोद के निकालिए और उसका आप ही बैठ के फैसला कर दीजिए। क्या बुरा कहा था हमने? ये विक्टर बाबू ये करे ना, अब उनकी पैरवी करके आप बेल करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये सहारा उस गरीब को और भी दीजिए, ताकि वो जिंदगी भर के लिए आपका शुक्रिया अदा करे और चैन से रह सके। पौनादार जितने भी हैं उन लोगों को आप बुलाइए, जितने भी पौनादार हैं, जितनी भी औरतें हैं जिनके अगेंस्ट में शाहीना बार बार केस की है, उन लोगों को भी बुलाइए। शाहीना से भी पूछिए कि ये औरतें तुम्हारे पास में आई, तुमसे पाती हैं और तुम उनके अगेंस्ट में केस करती हो, तो इसके पीछे क्या राज है? आप ये भी तो गौर कीजिए। सिर्फ एक तरफ देखने से नहीं होगा, दोनों तरफ देखिए आप। जो भी पौनादार है उन लोगों को भी बुलाइए आप खुद फैसला कर दीजिए। मेरा ये कहना है।